थ्योरम है हमारी, प्रूव दैट एनी रिंग आर कैन बी embedded into a ring with unity or any ring without unity can be embedded into a ring with unity। रिंग विद यूनिटी का मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए हमारी। लेट आर बी any ring and ZB ring of integers and let R dash बराबर है R क्रॉस Z। ए कॉमा एम टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ ए बिलोंग करेगा R को, एम बिलोंग करेगा Z को। एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन on R dash is defined as A, M प्लस B, N बराबर A प्लस B, M प्लस N एंड A, M B, N बराबर AB प्लस M AB प्लस NA प्लस MB, MA। First we prove R dash be a ring. We know R dash is called a ring if it satisfied the following property। पहली प्रॉपर्टी है R dash प्लस BN abelian group। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट A, M B, M बिलोंग करा है R dash को, तो A प्लस M B, N बराबर A प्लस B, M प्लस N बिलोंग करेगा R dash को। सिंस A प्लस B बिलोंग्स टू R और M प्लस N बिलोंग्स टू Z, तो implies R dash is closed with respect to addition। Second, associative law, let A, M B, N और C, P बिलोंग कर रहा है R dash को। A, M प्लस B, N प्लस C, P बराबर A प्लस B,
m प्लस n c प्लस p बराबर a प्लस b प्लस c m प्लस n प्लस p बराबर a कॉमा m प्लस b प्लस c कॉमा n प्लस p बराबर a कॉमा m b कॉमा n c कॉमा p। तो सो एसोसिएटिव लॉ फॉलो। Associative law follow. Existence of identity. Namaste. Let a comma m और 0,0 बिलोंग कर रहा है R डैश को। a कॉमा m प्लस 0,0 बराबर a प्लस 0 m प्लस 0 a कॉमा m implies 0,0 is identity element. Fourth, existence of inverse. Let a comma m minus a comma minus m belong कर रहा है R डैश को। a comma m प्लस माइनस a comma minus m a minus a m minus m 0,0 identity implies minus a comma minus m is inverse of a comma m. Commutative law. Let a comma m b comma n belong कर रहा है R डैश को। a comma m प्लस b comma n बराबर a प्लस b comma m प्लस n a प्लस b प्लस a comma n प्लस m बराबर b comma n a comma m। तो implies commutative law follow. Number 2, R dash comma dot b semi group. First, closure property. Let a comma m b comma n belong करा है R dash को। a comma m b comma n बराबर a b प्लस a n प्लस b m comma m n belong करेगा R dash को। Since a b a n b m belong करा है R को और m n belong करा है Z को। Implies R dash is closed with respect to multiplication. Associative law. Let a comma m b comma n c comma p belong करा है R dash को। a comma m b comma n c comma p बराबर a b प्लस a n b m comma m n प्लस c comma p a b c प्लस a b n a c n b c n प्लस a b p प्लस a n p प्लस b m p प्लस m n c comma m n p and a comma m b comma n c comma p बराबर a comma m
BC BP plus NC comma NP, ABC ACM BCM ABP ANP BMP MNC और MNP। तो सो A कमा M B कमा N C कमा P बराबर A कमा M B कमा N C कमा P implies associative law follow। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट A कमा M B कमा N C कमा P बिलोंग कर रहा है R S। A कमा M B कमा N C कमा P A कमा M B प्लस C कमा N प्लस P बराबर A B प्लस C A N प्लस P प्लस M B प्लस C कमा M N प्लस P बराबर AB प्लस AC प्लस AM प्लस AP प्लस MB प्लस MC कमा MN प्लस MP बराबर AB प्लस AN प्लस BM प्लस AC प्लस AP प्लस CM कॉमा MN प्लस MP AB प्लस AN प्लस BM कॉमा MN प्लस AC प्लस AP प्लस CM कॉमा MP बराबर A कॉमा M B कॉमा N प्लस A कॉमा M C कॉमा P implies distributive law follow। Hence R dash be a ring। Now we prove R dash be commutative ring। So let कर लिया हमने A कमा M B कमा M बिलोंग कर रहा है R dash को। R dash is ring with unity। So let A कमा M बिलोंग कर रहा है R dash को and 0,1 बिलोंग कर रहा है R dash को। तो A कमा M 0,1 बराबर 0 प्लस A प्लस 0 कॉमा M बराबर A कमा M एंड 0,1 A कॉमा M बराबर 0 प्लस 0 प्लस A कॉमा M बराबर A कमा M implies 0,1 is multiplicative identity implies R dash is ring with unity। Now consider a
सबसेट एस डैश बराबर आर क्रॉस 0 ऑफ आर डैश such that s dash बराबर a, 0 such that a belongs to R, and we prove s dash is subring of R dash. So let a, 0 b, 0 belong करा s dash को, implies a, 0 b, 0 बराबर a माइनस b, 0 एस डैश को, एंड a, 0 b, 0 बराबर ए बी प्लस 0 प्लस 0, 0 ए बी, 0 ये भी एस डैश को, एम्प्लाइज एस डैश बी ए सब रिंग ऑफ आर डैश. Now we consider a mapping phi R tends to S dash such that phi a बराबर a, 0, and we prove phi is an isomorphism. देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगी तो थ्योरम ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट एनी रिंग आर कैन बी इम्बेडेड इनटू ए रिंग विद यूनिटी. कोई भी रिंग आर है वो रिंग विद यूनिटी में इम्बेडेड होगी. इम्बेडेड का मतलब क्या है, हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है हमारी इसकी. क्या है डेफिनेशन? कि अगर हम आर डैश कोई रिंग है हमारे पास, ठीक है, आर डैश क्या है, कोई ऐसी रिंग है हमारे पास में डेफिनेशन थी, कोई भी रिंग आर है, आर डैश कोई रिंग है, कोई भी रिंग आर है वो आर डैश में इम्बेडेड कहलाएगी. कब? कि अगर आर डैश की कोई सब रिंग ले हम एस डैश, अब वो आर के साथ कैसी हो, आइसोमॉर्फिक हो. ठीक है ना, यानी कि आर जो है आर डैश पे इम्बेडेड कहलाएगी. कब? कि अगर आर डैश की कोई सब रिंग ले, अब वो किसके आइसोमॉर्फिक हो, आर के आइसोमॉर्फिक हो. तो डेफिनेशन है ए रिंग आर इज सेड टू बी इम्बेडेड इन ए रिंग आर डैश इफ देयर एग्जिस्ट ए सब रिंग एस डैश ऑफ आर डैश सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस डैश. आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस डैश. आर एस एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो. तो हमने आर डैश अपनी तरफ से कंसीडर कर ली रिंग आर क्रॉस जेड टाइप. ए कॉमा एम टाइप के एलिमेंट होंगे क्योंकि ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं. पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा. एडिशन इस तरीके से डिफाइन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन किया. हाँ यहाँ आएगा बेटा कॉमा, डिफाइन किया इस तरीके से. ठीक है ना. तो पहले हम प्रूव करेंगे आर डैश क्या रिंग है. हम जानते हैं आर डैश रिंग कब कहलाएगी, अब वो सेटिस्फाई करती है फॉलोइंग प्रॉपर्टी. पहले आर डैश को मोबिलिंग ग्रुप दिखाएंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी ले ली हमने, दो एलिमेंट लिया आर डैश के, दोनों को जोड़ा, ये भी आर डैश का एलिमेंट होगा. तो आर डैश क्या होगा हमारे पास में, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एसोसिएटिव लॉ में हमने तीन एलिमेंट ले लिए आर डैश के, इनको इस क्रम में ऐड किया तो इस क्रम में आ गए वो, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया. आइडेंटिटी में हमने 0,0 ले लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, दोनों को ऐड किया वही एलिमेंट आ गया, तो 0,0 आइडेंटिटी हो गया एडिशन में. इनवर्स के अंदर ये दो एलिमेंट लिए, दोनों को ऐड किया, आइडेंटिटी आ गई, तो ये एलिमेंट इसका इनवर्स हो गया. कम्यूटेटिव लॉ में ये दो एलिमेंट लिए, इनको इस क्रम में ऐड किया, ये इस क्रम में आ गए, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया. तो आर डैश क्या हो गया हमारे पास में, अबेलियन ग्रुप हो गया. अप्रूव करेंगे आर डैश सेमी ग्रुप है, तीन प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये एलिमेंट किसके होगा, आर का, ये दूसरा एलिमेंट होगा जेड का, तो किसके होंगे अंदर होगा, ए कॉमा बी आर डैश के अंदर होगा, तो आर डैश क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट ले लिए, पहले इस क्रम में इनकी मल्टीप्लाई की, फिर इस क्रम में मल्टीप्लाई की, दोनों मल्टीप्लाई कैसे आ गई, सेम आ गई, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर फिर तीन एलिमेंट ले लिए हमने, ए इंटू बी प्लस सी किया, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इनका आपस में प्रोडक्ट कर लिया, फिर इनको अलग अलग कर लिया,
तो एक ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन आ गया, एक ए कॉमा एम इंटू सी कॉमा एम पी आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ फॉल हो गया। तो आर डैश क्या हो गया हमारे पास में, रिंग। अब प्रूव करेंगे आर डैश क्या, रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, रिंग आर कैन बी इम्बेडेड इनटू रिंग विद यूनिटी। तो आर डैश को हम रिंग विद यूनिटी प्रूव करेंगे। तो हमने ए कॉमा एम आर डैश के अंदर ले लिया, 0,1 भी आर डैश के अंदर ले लिया, ए कॉमा एम इंटू 0,1 का इंटू किया आपस में, ए कॉमा एम ही आ गया, दूसरी तरफ से इंटू किया तब भी ए कॉमा एम ही आ गया। तो 0,1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आर डैश क्या हो गई, रिंग विद यूनिटी हो गई। अब कंसीडर किया एक सबसेट एस डैश, किसका, आर डैश का, आर क्रॉस 0 टाइप के एलिमेंट है इसमें, यानी कि एस डैश में इस टाइप के एलिमेंट होंगे जहां एक इसका एलिमेंट है आर का। अब प्रूव करेंगे एस डैश क्या है, सब रिंग आर डैश की। सब रिंग के लिए दो कंडीशन होती है, ए माइनस बी और ए बी। तो पहले हमने ए माइनस बी किया, ए बी दो एलिमेंट माने एस डैश के, ए माइनस बी किया, इसी टाइप का एलिमेंट आया, ए कॉमा 0 टाइप का ही एस डैश के अंदर होगा। फिर इनका प्रोडक्ट किया दोनों का, तब भी ए बी कॉमा 0 वही टाइप का एलिमेंट आया, ये भी एस डैश के अंदर होगा। एस डैश क्या होगी हमारे पास में, सब रिंग कहलाएगी आर डैश की। तो एस डैश सब रिंग भी आ गई। अब हमने कंसीडर की मैपिंग आर सा एस डैश के अंदर, फाई ए बराबर ए कॉमा 0। अब प्रूव करेंगे फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। क्यों कर रहे हैं, मानी हमने इसको ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना है, आर कैन बी इम्ब्रीड इन ए रिंग विद यूनिटी में इम्ब्रीड होगी। तो क्या करते हैं इसके लिए, रिंग आर जो है, रिंग विद यूनिटी को हम आर डैश बोलते हैं, तो आर आर डैश में कब इम्ब्रीड होगी, कि अगर आर डैश की कोई सब रिंग एस डैश ऐसी एग्जिस्ट कर जाए कि आर और एस डैश कैसे हो, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो, तब बोलते हैं आर इम्ब्रीड होगी आर डैश के अंदर। तो हमने जो रिंग एक आर डैश रिंग ली, उसको रिंग विद यूनिटी दिखा दिया, रिंग विद उसकी एक सब रिंग भी ले ली हमने आर डैश की, और हम ये प्रूव कर दें कि आर और एस डैश क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, तो क्या होगी, आर आर डैश में इम्ब्रीड हो जाएगी। हाँ पूरा ही, अभी तो और भी आ गए भी आइसोमॉर्फिज्म और दिखाएंगे अभी हम। हाँ जी, सारी प्रॉपर्टी शो करनी है हम। तो अब हमें आर को एस डैश के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है अगर हमें, तो क्या करना है, हमें एक मैपिंग कंसीडर करनी है फाई की, आर से एस डैश के अंदर। अप्रूव करेंगे फाई क्या है हमारी, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन होती है, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। लिखेंगे फाई इज 1 1। सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे हम। लेफ्ट ए कमा बी बिलोंग करा है आर को, एंड फाई ए बराबर है फाई बी के, तो इम्प्लाइज ए कमा 0 बराबर है बी कमा 0। तो इम्प्लाइज ए बराबर है बी के, फाई इज 1 1, सेकेंड फाई इज ऑन 2। तो सिंस ईच ए कॉमा 0 बिलोंग्स टू एस डैश के लिए देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ए बराबर ए कॉमा 0, तो इम्प्लाइज फाई इज ऑन 2। थर्ड फाई इज होमोमॉर्फिज्म। लेट ए कमा बी बिलोंग करा है आर, फाई ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी कॉमा 0, ए कॉमा 0 बी कॉमा 0, फाई ए फाई बी, एंड फाई ए बी बराबर ए बी कॉमा 0, ए कॉमा 0 इंटू बी कॉमा 0 बराबर फाई ए इंटू फाई बी। Hence, phi is an isomorphism. That implies any subring S dash of R dash implies
ring R is isomorphic to a subring S dash of R dash. The implies R can be embedded into R dash. The implies every ring can be embedded into ring with unity. ये हमारा आंसर हो जाएगा। थ्योरम है every integral domain can be embedded in a field or a complete ring without zero divisor, a commutative ring without zero divisor can be embedded in a field or from the element of an integral domain D. It is possible to construct a field F which contain a subset D dash isomorphic to D. Isomorphic to Rho. And let D be a commutative ring without zero divisor. And D0 be set of all non-zero element of T and let S बराबर है D क्रॉस D0. Then S be the set of all ordered pairs
A comma B, where A comma B belongs to D and B not equal to 0. And define a equivalence relation in S such that A comma B relative to C comma D if and only if AD बराबर BC. And quotient A upon B is defined as A upon B बराबर C comma D such that C comma D equivalent to A comma B, and let F be set of all such quotients. Then F बराबर A upon B such that A comma B belongs to S, and addition and multiplication in F is defined as A upon B plus C upon D बराबर AD plus BC upon BD. A upon B into C upon D बराबर AC upon BD. And we prove and first we prove FBA filled. We know F is called a field if it satisfies the following property. First, F comma plus Bn abelian group. पहला क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट A अपॉन B कॉमा C अपॉन D बिलोंग करा F को. A अपॉन B प्लस C अपॉन D बराबर AC प्लस AD प्लस BC. AD प्लस BC अपॉन BD बिलोंग कर F को. Since BD not equal to 0, implies F is closed. इसमें फील्ड प्रूव करना है. फील्ड के लिए हमें 11 प्रॉपर्टी फॉलो करनी है. फिर इसका जो F का एक सबसेट मानेंगे, ठीक है ना, उस सबसेट को सबरिंग प्रूव करेंगे, ठीक है ना. फिर सबरिंग प्रूव करने के बाद जो D को आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे उस सबरिंग के.
Associative law. Let A upon B, C upon D, E upon F belong करा F को. A upon B plus C upon D, E upon F बराबर A upon B, CF plus DE upon DF बराबर ADF, BCF, BDE upon BDF and A upon B, C upon D, E upon F बराबर AD plus BC upon BD plus E upon F, ADF plus BCF plus BDE upon BDF. So A upon B, C upon D, E upon F बराबर C upon D, E upon F implies associative law follow. Existence of identity. Let A upon B, 0 upon B belong करा F को. A upon B plus 0 upon B बराबर B into B. A into B plus 0 into B बराबर AB upon B into B बराबर A upon B. Imply 0 upon B is identity value. Existence of inverse. लेट कर लिया हमने. A upon B, minus A upon B belong करा F को. A upon B plus minus A upon B बराबर AB minus AB upon B बराबर 0 upon B into B, 0 upon B. बराबर identity. Implies minus A upon B is inverse of A upon B. Commutative law. Let A upon B, C upon D belong करा F को. A upon B plus C upon D बराबर AD plus BC upon BD, BC plus AD upon DB बराबर C upon D plus A upon B. Implies commutative law follow. नंबर 2 F डॉट BN abelian group. Closure property. Let A upon B, C upon D belong करा F को into C upon D बराबर AC upon BD belong करा F को since BD not equal to 0 implies F is closed.
देखो इसमें 1 1 ऑन टू होमोर्फी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, लेट ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ बिलोंग करा एफ को ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ बराबर ए अपॉन बी सी अपॉन डी एफ ए सी ई अपॉन बी डी एफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ बराबर ए सी अपॉन बी डी ई अपॉन एफ ए सी ई अपॉन ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ। Associative law follow. Existence of identity. Let A upon A, comma, C upon D belong करा F को A upon A, C upon D बराबर A C upon A D बराबर C upon D implies A upon A is multiplicative identity. Existence of let A upon B, comma B upon A belong कर रहा है F को तो A upon B into B upon A बराबर A B upon A B बराबर A upon A identity B upon A is inverse of A upon B. Commutative law. Let A upon B, C upon D belong करा F को A C upon B D, C A upon D B, C upon D commutative law follow. Distributive law. Let A upon B, C upon D, E upon F belong करा F को A upon B, C upon D, E upon F बराबर A upon B, C F, D E upon D F बराबर A C F upon B D F प्लस A D E upon B D F। AC upon BD plus AE upon BF A upon B into C upon D plus A upon B into E upon F implies distributive law
follow. Hence, F be a filled and called quotient fill. समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन जो है ना इनबिल्ड होगा फील्ड में। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और विद यूनिटी भी साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोई कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर कैन बी इम्बेडेड इन ए फील्ड। दोनों तरीके पूछा जा सकता है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तुमने डी ले लिया कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, और अगर इंटीग्रल डोमेन से आता है तो डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और डी जीरो ले लिया हमने सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, और एक सेट लिया हमने एस डी क्रॉस डी जीरो, देन एस बी का सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, जहां ए बी डी के एलिमेंट होंगे बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एक हमने डिफाइन किया इक्विवेलेंस रिलेशन एस के अंदर, क्या ए कॉमा बी रिलेटिव होगा सी कॉमा डी से, कब, अगर ए डी बराबर बी सी के। अब कोसेंट ए अपॉन बी को हमने डिफाइन किया, कैसे, ए अपॉन बी जो होगा वो सी कॉमा डी के इक्विवेलेंट होगा, कब, अगर सी कॉमा डी रिलेटिव है ए कॉमा बी के। यानी कि जो कोसेंट है ए अपॉन बी उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो कि ए कॉमा बी के साथ में रिलेटिव इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। और हमने एफ मान लिया सेट ऑफ ऑल सच कोसेंट, इस टाइप के जितने भी रिलेशंस हैं उनका सेट को हमने एफ बोल दिया। तो हम प्रूव करेंगे एफ क्या है हमारे पास में, फील्ड है कि किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन को हमने इस तरीके डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके डिफाइन किया। अब फर्स्ट हम प्रूव करेंगे फील्ड है। हम जानते हैं फील्ड कब कहलाएगा, वो सेटिस्फाई करे फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एफ प्लस को पहले एवेलेंट ग्रुप दिखा रहे हैं हम, क्लियर प्रॉपर्टी। जो कंडीशन क्या है, ए अपॉन बी में ए कॉमा बी एस के अंदर होने चाहिए। ए कॉमा बी एस के अंदर कब कहलाएगा, जब बी नॉट इक्वल टू जीरो हो, जब तो है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमारे पास। तो हमने ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी के इतना आया, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो, डी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ये भी किसके अंदर होगा, एफ के अंदर होगा। एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट ले लिए, एलसीएम ले लिया पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों को ले लिया एलसीएम में, फिर इन दोनों को इस तरीके से ले लिया, दोनों टर्म क्या आ गई, दोनों बराबर आ गए, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। आइडेंटिटी में ए अपॉन बी है, जीरो अपॉन बी ले लिया इसके अंदर, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो है। ए अपॉन बी प्लस जीरो अपॉन बी किया, एलसीएम ले लिया, ए प्लस जीरो तो ए होगा ए अपॉन बी, तो जीरो अपॉन बी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इनवर्स में हमने ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी ले लिया इसके अंदर, ए अपॉन बी प्लस माइनस सी अपॉन बी, बी एलसीएम ले लिया, ए माइनस सी जीरो अपॉन बी आइडेंटिटी, तो माइनस सी अपॉन बी इनवर्स हो गया ए अपॉन बी। कम्यूटेटिव लॉ में हमने ए अपॉन बी सी अपॉन डी लिया, इनको पहले बदल दिया हमने, क्योंकि ये क्या है, सब कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर के एलिमेंट्स है, डी के एलिमेंट है, डी तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी। इनको बदल दिया या अलग अलग कर लिया, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। अब प्रूव करेंगे एफ डॉट क्या विलिंग ग्रुप है, तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी ले ली। अब बी नॉट इक्वल टू जीरो, डी नॉट इक्वल टू, तो बी डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ए सी अपॉन बी डी किसके अंदर होगा, एफ के अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने तीन एलिमेंट ले लिए, पहले इस तरीके से प्रोडक्ट किया, फिर इस तरीके से प्रोडक्ट किया, दोनों प्रोडक्ट बराबर आ गए, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया। आइडेंटिटी में हमने ए अपॉन ए और सी अपॉन डी ले लिया, ए अपॉन ए इंटू सी अपॉन डी, ए सी अपॉन ए डी, ए से हट जाएगा सी अपॉन डी, तो ए अपॉन ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। इनवर्स हमने ए अपॉन बी और बी अपॉन ए ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वन आएगा, वन को ए अपॉन ए बोल सकते हैं आइडेंटिटी, तो बी अपॉन ए इनवर्स हो गया ए अपॉन बी का। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ले लिया इसके अंदर, दोनों का प्रोडक्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, तो क्या बोला हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग बोला हुआ है, यानी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। इनको इंटरचेंज कर दिया, अलग अलग कर लिया, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ले लीजिए, तीन एलिमेंट ले लिए हमने, तीनों को पहले इनको ऐड करेंगे, फिर इसका इसमें अंदर इंटू कर लिया, यहाँ एफ से एफ कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, अलग अलग कर लेंगे इनको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। तो एफ को क्या हो जाएगा हमारा फील्ड, इसी को हम कोसेंट फील्ड बोलेंगे, यही कोसेंट फील्ड कहलाएगा हमारा। अब क्या करना है हमें इस एफ का एक सबसेट लेना है डी डैश, जैसे बोला है यहाँ पर, हाँ, विच कंटेन ए सबसेट डी डैश। डी डैश को हम क्या प्रूव करेंगे, सब रिंग प्रूव करेंगे।
ठीक है। अब फिर डी को आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे किसके, डी डैश। नाउ कंसीडर ए सेट डी डैश ax upon x belongs to f such that a comma x belong करें d को और x not equal to 0। And we prove D is isomorphic to D dash. So consider a mapping phi D tends to D dash such that phi है बराबर ax अपॉन x फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d के लिए। देखिए क्योंकि ये फील्ड है तो यहाँ पे हमें सबरिंग दिखाने की जो आवश्यकता नहीं है। सबरिंग में हम a माइनस बी और ए बी तो दिखाते हैं, ये जब अविनय रूप एडिशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों तो ऑलवेज फॉलो होंगे, तो इसलिए इसको सबरिंग वाली कंडीशन को नहीं दिखाया है, वो ऑलरेडी अपने आप सबरिंग होगी। ठीक है ना। इससे पहले वाली में केवल रिंग रिंग थी, ठीक है, तो इसलिए हमें वहां पर सबरिंग दिखाना पड़ा। And we prove phi is an isomorphism. First, phi is 1 1. Let a comma b belong करा d को, and phi ये बराबर है phi b के, ax अपॉन x बराबर है bx अपॉन x के। और ये एक्स एक्स बराबर है बी एक्स एक्स, तो इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाइज ए बराबर बी। या ऐसे कर लीजिए, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बराबर 0, इम्प्लाइज ए माइनस बी बराबर 0, सिंस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज ए बराबर बी, फाई इज 1 1। Phi is on 2. Since each ax upon x belongs to d dash के लिए there exists an element a belongs to d such that phi ये बराबर ax upon x, phi is on 2, phi is homomorphism।
एक मीडियम पिज्जा बिल्कुल लेफ्ट होली मेला रोड, ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बराबर फाइव ए प्लस फाइव बी एंड फाइव ए बी बराबर ए बी एक्स अपॉन एक्स बराबर ए एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स अपॉन एक्स बी एक्स अपॉन एक्स फाइव ए इंटू फाइव implies phi is an isomorphism implies D is isomorphic to D dash implies every integral domain can be embedded into a field. हमने यहां पर फाइव मैपिंग कंसीडर की, फाइव को वन वन प्रूव करना है, तो हमने फाइव बराबर फाइव भी लेकर चले, ए एक्स बराबर बी एक्स, इसका क्रॉस इंटू कर लिया, एक तरफ ले आएंगे। अब क्योंकि ये तो विदाउट जीरो डिवाइजर है ना, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ए माइनस बी जीरो होगा, तो ए बराबर बी आ जाएगा, तो फाइव ओवर वन हो जाएगा। ऑन टू में ए एक्स अपॉन एक्स के लिए कोई ना कोई ऐसा होगा डी के अंदर कि फाइव बराबर एक्स अपॉन एक्स, उल्टा वे लिखते हैं केवल डेफिनेशन को हम। होमोमॉर्फिज्म के लिए ए बी हमने डी के अंदर मान लिया, फाइव ए प्लस बी किया, ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स अलग अलग कर लिया, फाइव ए बी लेकर चले, ए बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स का ऊपर नीचे इंटू कर लिया, इसमें अलग अलग कर लिया, तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो डी क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक टू डी डैश, तो डी आइसोमॉर्फिक टू डी डैश का मतलब कोई हमें डी डैश ऐसा सेट सबसेट मिल गया डी का, ठीक है, कि कैसा है वो, डी आइसोमॉर्फिक है डी डैश के, तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू ए फील्ड, फील्ड में एम्बेडेड हो जाएगा।